Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. I am here with the topic enzymes, and today that is going to be a very much comprehensive um, presentation over the enzymes. I will be trying to complete all the aspects which are included in your syllabus. Enzymes are very much important because there are many chapters in which they are linking. Cambridge is linking the enzymes in those chapters like biotechnology, plant reproduction, in which the seed germination is over there, and along with that digestive system. तो इतने ज्यादा चैप्टर्स आपके पास कैम्ब्रिज ने इंक्लूड किए हैं जिनमें एंजाइम्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. सो वी आर गोइंग टू सी दैट टॉपिक इन द डिटेल. सो यू हैव टू बी पेशेंट, or that video might be a bit lengthy today. So starting with that, there will be some terminology you must be very much familiar with. That is enzyme. They are the biological catalyst and they are the protein in nature. Substrate is the molecule on which the enzyme is going to act. And the active site is always present on the enzyme surface that is specific to the substrate, and that is where the substrate is going to bind and fit into. And enzyme substrate complex will be formed when the substrate is going to fit into the particular active site, and the resultant thing will be the enzyme substrate complex. And same is the case whenever the product will be formed, enzyme product complex will be formed. So what are the characteristics of enzyme? अगर आपको characteristics समझ आ जाएंगी तो ultimately you will be able to learn the properties of the enzymes as well. Enzymes, they are protein in nature. They are biological catalyst and they will be affected by the pH. Enzymes are affected by the temperature. They are going to control the reversible reaction. Many reversible reactions are taking place inside our body. I will be discussing it later. And the most important, they are specific in the action. So what is the catalyst? Catalyst is any substance which is going to speed up the rate of the chemical reaction. And the main important thing, they remain unchanged at the end of the reaction. Enzyme, as they are serving the purpose of catalyst in the bodies, living organisms, so they are considered the biological. Okay. That is the which kind of cell? Animal cell. Enzymes are involved in the metabolism, and different chemical reaction are taking place. Some are breaking down reaction, some are synthetic reaction. All these are involving the enzyme, like respiration, protein synthesis, lipid synthesis, all are involving the enzymes in them. So the metabolism is the sum of all the chemical reaction which happen inside our body, and that is what kind of those all reactions are. Some are catabolic reaction and some are anabolic reaction. So kata आपने याद रखना है from the cut, and that is they are the cutting down reaction. C for cut and C for catabolism, they are somewhat the breaking down reactions, while anabolism are synthetic in nature. So coming toward the catabolism, the main example is respiration. Anabolism, the main example from your daily life is the condensation of the glucose or formation of the, you can say, the starch. Fine. Whenever the glucose in the presence of oxygen is broken down, the energy is being released, water and carbon dioxide is produced, and enzyme is used in this reaction. ठीक है जी, ये आपके पास रेस्पिरेशन की एक एग्जांपल है, एनर्जी रिलीज होती है. फाइन. And in terms of the anabolic, when many glucose units are going to combine together, that process is known as condensation. And in this reaction, energy will be involved in the presence of enzymes. So the starch molecule will be formed.
ठीक है जी। सो हाउ डू एंजाइम दे आर गोइंग टू स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन, किस तरह से एंजाइम एक केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं? बेसिकली दे आर गोइंग टू स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। दे आर गोइंग टू स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। दैट इज अ कीवर्ड, ये आपके पेपर में होना चाहिए if the question comes. Okay. And whenever they are going to lower the activation energy, they are also responsible for carrying out the reactions at lower temperature, because enzymes are affected by the temperature. So many reaction which are involving the higher temperature to start, they can start at a lower temperature whenever the enzyme is there. ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हैं जिनको रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए हायर टेम्परेचर चाहिए होता है, बट एंजाइम क्या करेगा, उसकी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट को लो कर देगा और वो लो टेम्परेचर पे स्टार्ट हो जाएंगे रिएक्शन। सो दैट इज बेसिकली हाउ हम एक एनर्जी बैरियर को, एक रिएक्शन को कैसे स्पीड अप कर सकते हैं बाय यूजिंग टेम्परेचर और बाय यूजिंग एंजाइम। ओके, अगर मैं टेम्परेचर रेस करूंगी तो अल्टीमेटली आपके पास एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एंजाइम टिल अ सर्टेन पॉइंट, रिमेंबर टिल अ सर्टेन पॉइंट। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। बट जब एनर्जी लेवल काइनेटिक एनर्जी की वजह से रेज होता है तो हमारे पास एनर्जी बैरियर तो कम हो ही जाता है। ये पहले एनर्जी इतनी थी, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बाद में इतनी हो गई, आपके पास ये डिफरेंस आएगा कि एनर्जी बैरियर कम हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट ही इस टेम्परेचर से हो जाता है। बट व्हाट इट हैपेंस, इजी है एनर्जी बैरियर को बाय रेजिंग द टेम्परेचर कंट्रोल करना, दैट इज इजी। बट क्या होगा इन केस ऑफ एंजाइम, दैट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज आपकी बॉडी में एंजाइम जो है बहुत सारे सेल्स के अंदर हैं, जब एंजाइम किल हो जाएंगे तो आपके बॉडी में रिएक्शन हो ही नहीं सकेंगे। अब दूसरा हमने काम क्या करना है, हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को एंजाइम के थ्रू कंट्रोल करेंगे। हम एंजाइम क्या करते हैं, दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उसको लोअर कर देंगे, दैट इज अ गैप विच इज बीइंग लोअर्ड। So that is how enzyme, whenever they are going to lower the activation energy, ultimately उसकी temperature की requirement भी कम हो जाएगी। Okay, that is the level। आपको एक image मुझे बहुत अच्छा मिला, I am showing it to you एंड शेयरिंग इट विद यू कि एनर्जी लेवल नॉर्मली इतना है उसको स्टार्ट होने में, लेकिन एंजाइम के साथ वो इतना हो जाएगा। अगर मैं इसी चीज में टेम्परेचर को एड अप करूं तो टेम्परेचर की वजह से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, वो यहाँ पे पहुंच जाएगा और ये बैरियर उसके लिए क्रॉस करना ईजी रह जाएगा। बट इन केस ऑफ एंजाइम, एंजाइम आर अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, तो हमारी बॉडी में सेल की वर्किंग ही एंजाइम की बेस पर हो रही है, सेल इट सेल्फ प्रोटीन के बने हुए हैं, तो वो भी डैमेज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ हायर टेम्परेचर। बिकॉज हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, बेस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर है सेल की एक्टिविटी के लिए, प्रोटीन्स के लिए। तो अगर मैं टेम्परेचर रेस कर दूंगी तो रिएक्शन तो स्पीड अप हो जाएगा बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, बट क्या होगा, मेरा सेल की प्रोटीन डेड हो जाएंगी। That is again another good image in which you can see that how the lowering of the activation energy is being, activation energy beta, that is the energy required to start a chemical reaction। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जल्दी से आप लोग स्लाइड पढ़ लें, दैट इज ओनली सिंपली वो मैंने आपको बता दिया है कि हम किसी भी रिएक्शन को टेम्परेचर रेज करने से भी उसकी स्पीड अप करवा सकते हैं और हम उसको एंजाइम यूज करके भी करवा सकते हैं। ठीक है, बट टेम्परेचर इज नॉट अ सुटेबल कंडीशन बिकॉज उसमें आपके पास क्या होगा, डैमेज हो जाता है। नाउ कमिंग टुवर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जल्दी से इसको देख लीजिए। रिपीट करना इसलिए जरूरी है बिकॉज दैट इज हैविंग मोर इन्वॉल्वमेंट इन द अपकमिंग स्लाइड्स। समरी क्या है जी एंजाइम के बारे में, ये आपकी अगर फिंगर टिप्स पे होगी तो ए स्टार तो पक्का है इंशाल्लाह। ठीक है, characteristics of enzyme क्या है, they are the biological catalyst because they are serving the purpose of metabolism in the living organism। कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ भी है, उसके अंदर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट के तौर पर इन्होंने मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होना है। यहाँ पर एक आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, वायरसेस आर नॉट कंसीडर्ड एज लिविंग बिकॉज उनके पास मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है, उनके पास एंजाइम्स ही नहीं है।
ओके, रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट, इसे समझ लें. वायरसेस, दे डोंट हैव द एंजाइम, दे डोंट हैव द मेटाबॉलिक मशीनरी, दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंसीडर्ड एज लिविंग. ओके जी, दे आर प्रोटीन इन नेचर, आपको बता दिया मैंने. तो अल्टीमेटली इनकी प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट होगी. डाइट में अच्छी अच्छी प्रोटीन्स खाएंगे तो अमाइनो एसिड मिलेंगे, तो एंजाइम बनेंगे. Okay, they are going to speed up the chemical reaction by lowering the activation energy. Energy required to start a chemical reaction is the lowering energy. They are required in small amount. अब मसला क्या है, why they are required in the small amount? मैं प्रोटीन भी अच्छी खासी खा रही हूँ, तो इनकी small amount ही क्यों require है? Because they remain unchanged at the end of the reaction. कोई भी reaction है, जब वो खत्म हो जाएगा, enzyme, they are the catalyst, they are not going to be affected, they remain as it is. जब वो as it is रह जाएंगे, तो ultimately they can be reused over and over. यहाँ पे मैं एक point add करना भूल गई, they can be reused over and over because they are going to remain unchanged, so they can be reused. Okay, दोबारा से यूज हो जाएंगे, दैट्स व्हाई दे आर रिक्वायर्ड इन द स्मॉल अमाउंट. मैं अब भी इसको बल्कि एडिट भी कर देती हूँ जल्दी से. ओके, दे कैन बी reused, can be reused again and again. ठीक है जी, इसको सेव कर देते हैं साथ ही, ताकि ये कंफर्म हो जाए. ओके जी, सो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा. दे रिमेन अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, सो दे कैन बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन. जब अगेन एंड अगेन उन्होंने रीयूज हो जाना है, तो फिर अल्टीमेटली उनकी स्मॉल अमाउंट आर सफिशिएंट. ओके, सो एंजाइम, दे आर स्पेसिफिक इन नेचर. व्हाई दे आर स्पेसिफिक इन नेचर? बिकॉज दे आर हैविंग द एक्टिव साइट, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, बट डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे. दे एंजाइम आर अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर एंड द पीएच, एंड दे कैटालाइज द रिवर्सिबल रिएक्शन. तो 10 प्रॉपर्टीज हैं, यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट. ओके, सो व्हाट इज द एक्टिव साइट? एक्टिव साइट, अब इसकी भी पर्टिकुलर बेटर टर्मिनोलॉजीज आपके उसमें होनी चाहिए एग्जाम में. दे आर द स्पेसिफिक डिप्रेशंस और पॉकेट्स ऑन द एंजाइम सरफेस, और ग्रूव भी आप इसे कह सकते हैं. स्पेसिफिक डिप्रेशन, ग्रूव, पॉकेट ऑन द एंजाइम सरफेस into which the substrate come and fit into, and these are the complementary to the substrate. बेटे ये सारी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपके उसमें की वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं. स्पेसिफिक डिप्रेशन, पॉकेट, कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट, इसमें आपके पास ये कीवर्ड्स आपके एग्जाम में एग्जामिनर को चाहिए ही चाहिए. यू हैव टू पुट इन. ओके, so these are the specific pockets repression on the surface of enzyme which are complementary to the substrate. Okay, now coming toward the type of enzyme. enzyme हमारी बॉडी में दो तरह के होते हैं. some are extracellular, जो हम बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं. can you people give the example? बॉडी से बाहर नहीं, सॉरी, सेल से बाहर रिलीज करते हैं. दैट इज एग्जाम्पल, इसकी बड़ी परफेक्ट एग्जाम्पल है जी आपके पास पेप्सिन की. वो भी स्टमक सेल से रिलीज होकर स्टमक में आके डाइजेशन करता है. एमिलेज है, स्लिवरी ग्लैंड से बाहर आकर माउथ में डाइजेशन कर रहे हैं. तो ऑलमोस्ट सारे के सारे एंजाइम जो हमारी बॉडी में डाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, दे आर द एक्स्ट्रा सेलुलर. सो व्हाट आर द इंट्रासेलुलर एंजाइम? यू माइट रिमेंबर, मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि हमारे पास लाइजोजाइम इज अ पार्ट ऑफ अ सेल. एनिमल सेल में ये लाइजोजाइम है. these are basically inside the cell and they are involved in the intracellular digestion. intracellular digestion में involve होते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू वर्ड्स, नेमिंग ऑफ एंजाइम, इनकी दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंजाइम को यूजुअली हम सुफिक्स एज इनके एंड पे आ जाता है, तो दे कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड. ठीक है, जिस तरह से एग्जाम्पल आ गई आपके पास, लाइपेज, एज आ गया, तो दे आर एक्टिंग ऑन द लिपिड. यूजुअली इनके नेम्स आजकल इस तरह से क्लासिफाई किए जा रहे हैं, नेमिंग इस तरह से की जा रही है, दैट इज रिलेटेड टू देयर सबस्ट्रेट. बट प्रीवियसली या तो उनका किसी रीजन की वजह से उनका नेम डिफरेंट था, सच एज कैटालेज, एमिलेज. एमिलेज इज एक्टिंग ऑन स्टार्च, बट दैट इज हैविंग नो, अब हम इसको स्टार्चेज तो नहीं कह सकते. ठीक है, तो ड्यू टू सर्टेन रीजन इनके प्रीवियस जो नेमिंग थी वो डिफरेंट थी. ठीक है, और जो सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है ना बेटा, वो हमारी जो इंडस्ट्री में या हमारी लैब कंडीशन में या हम इसे अक्सर एग्जाम में देखते हैं, दैट इज द कैटालेज. ठीक है,
ओके, अब एंजाइम्स दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, रिमेंबर कि आपके पास लाइपेज विल बी ओनली एक्टिंग ऑन द लिपिड्स, जब चेंज करेगा तो फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल बनाएगा। स्टार्च की ब्रेकडाउन के लिए एमिलेज है, रिमेंबर अक्सर बच्चे मिसकंसेप्शन है कि स्टार्च के ऊपर एमिलेज एक्ट करेगा तो ग्लूकोज बनेगा, वेरी वेरी बिग मिसकंसेप्शन। बेटा जी बनना ही माल्टोज ने, कभी भी एग्जाम में लिखोगे हमेशा गलत करोगे। स्टार्च विल बी डाइजेस्टेड बाय द एमिलेज एंड द प्रोडक्ट विल बी maltose, क्योंकि maltase enzyme will be breaking down the maltose into 2 glucose unit। अच्छा, यहाँ पे इससे रिलेटेड आपको एक मजे की चीज बताऊं, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, इस तरह का मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा आपको, आपको बताया जाएगा जी इसकी डाइजेशन करनी है। डाइजेशन करनी है तो बेटा आपने याद रखना है कि एमिलेज ने माल्टोज बनाना है, तो माल्टोज में 2 ग्लूकोज यूनिट है, आपने यहाँ दो दो जगह से ब्रेक डाउन कर देना है। ठीक है, 2 यूनिट्स को फ्यूज करनी है। रिमेंबर इसमें हमारे पास टोटल आ रहे हैं 1 2 3 4 और 4 8 है, तो आपके जो प्रोडक्ट बनेंगे 4 माल्टोज की यूनिट्स आपने बनानी है, जिनमें ईच विल बी हैविंग 2 ग्लूकोज यूनिट। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज देखो, ये आपको एक चीज नजर आ रही है, दैट इज द प्रोटीएज, और डाइजेस्ट होके पॉलीपेप्टाइड या अमाइनो एसिड बनाएगा। रिमेंबर वन थिंग, पेपर में अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है रिलेटेड टू द सबस्ट्रेट, और उसको सबस्ट्रेट आइडेंटिफाई करें, उसका साथ में एंजाइम का नाम क्या होगा। अब यहां पर आपको बेटे जो मॉलिक्यूल सेम साइज और सेम शेप का होगा, ठीक है, या सेम कलर का होगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज स्टार्च, बिकॉज स्टार्च इज मेड अप ऑफ मल्टीपल यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। जबकि प्रोटीन्स उसमें आपको या तो वो साइज चेंज करके दिखा देगा, ठीक है, ये तो प्रोटीएज है, वो या तो आपको साइज चेंज करके दिखा देगा, बिग स्मॉल, वेरी स्मॉल, बिग लार्ज, इस तरह करके वो दिखा देगा, या वो शेप चेंज कर देगा, या वो कलर चेंज कर देगा एग्जामिनर। ठीक है, तो जिसमें चीज सेम नहीं होगी, दैट विल बी द प्रोटीन मॉलिक्यूल, बिकॉज आपकी बॉडी में टोटल 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड हैं, जिनकी वजह से आपके पास डिफरेंट प्रोटीन्स बनती हैं, और प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होती हैं तो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं, और टोटल 20 अमाइनो एसिड, उनके मल्टीपल जो हैं इन डिफरेंट नंबर एंड सीक्वेंस, दे आर गोइंग टू मेक अप डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन। ओके जी, आगे चलते हैं। ये भी एक डायग्राम ही है, सेम है, याद रखना है, ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा स्टार्च वाला ग्लूकोज तो बनेगा माल्टोज। ठीक है, रिमेंबर यहाँ पे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि जी स्टार्च इनसॉल्युबल है, बट जब माल्टोज होता है दैट इज सॉल्युबल। ओके, नाउ कमिंग टू वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट रिलेटेड और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द एंजाइम इज द लॉक एंड की हाइपोथेसिस। अक्सर गूगल पे बहुत गलत लिखा हुआ है कि जो की है वो है एंजाइम, और लॉक जो होता है वो सबस्ट्रेट होता है, दैट इज टोटली रॉन्ग। एंजाइम्स आर लॉक, एंजाइम्स आर लॉक, याद रख लो, एंजाइम्स आर लॉक। अब मैं अपने स्टूडेंट को कैसे याद रखवाती हूँ, बेटे देखो डोर के ऊपर ताला लगा हुआ है, ताला तो उधर, ये चाबी उसके पास आती है ना, ताला लॉक तो वहीं पे डोर पे है, उसको ओपन करना है तो चाबी आप उसके पास लेकर आएंगे। एंजाइम तो आपकी बॉडी में है, सबस्ट्रेट तो आप खाएंगे ना। ठीक है, याद रह जाएगा अब आपको इंशाल्लाह ताला। ओके, सो लॉक एंड की हाइपोथेसिस में एंजाइम्स आर लॉक और सबस्ट्रेट आर की, और इनकी भी कॉम्प्लीमेंट्री शेप होने की वजह से, बिकॉज एक्टिव साइट इज ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम, तो वहां पे सबस्ट्रेट आके फिट हो जाएगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहां पर अगेन आपको मैं बता दूं, एक्टिव साइट आर स्पेसिफिक डिप्रेशन pocket on the enzyme surface on which the substrate come and fit into। Okay जी, that is a specific geometric shape which is responsible for binding of the substrate। Okay जी, नेक्स्ट अब चलते हैं, ये लॉक एंड की हाइपोथेसिस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता चुकी हूं, यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ठीक है जी, ओके, सो जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है, तो प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, और एंजाइम विल बी सेट फ्री टू स्टार्ट और इनिशिएट एन अदर metabolic reaction। enzyme फारिग हो जाएगा and that will be starting an other reaction। okay, these are the enzymes, substrate and the product which are going to be formed। ये आपके important syllabus में है, इनको याद रखो। एमिलेज विल बी एक्टिंग ऑन स्टार्च और माल्टोज बनेगा। ठीक है, माल्टोज के अंदर अब यहाँ पर जो माल्टोज है बेटा, दैट इज हैविंग 2 ग्लूकोज यूनिट, उसको डाइजेस्ट करेगा माल्टेज। ये देख लें, सब मैंने एंजाइम में एज 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 लिखा हुआ है, सो आपने इस चीज को याद रखना है। ठीक है,
दो ग्लूकोज यूनिट बनेंगे, लैक्टेज एक्ट करेगा लैक्टोज पे, ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनेगा। लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर, याद रखना है, योगर्ट और चीज में भी हमने इसका डिस्कस किया था। सेलुलेज इसका सबस्ट्रेट है सेलुलोज, और ग्लूकोज बनेगा बिकॉज सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज जस्ट लाइक द स्टार्च। स्टार्च है जी एनिमल में और सेलुलोज होता है प्लांट में। एक और भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जल्दी से बताएं उसका नाम, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लिखकर बताइएगा। एक और ग्लूकोज का पॉलीमर है जो कि एनिमल में होता है, उसका नाम क्या है, आपने कमेंट में लिख के बता देना है मुझे। ठीक है, सेलुलेज अब हमारी बॉडी में नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर अनएबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज फाइबर। सेलुलोज फाइबर यहाँ पे रिपीट करती चलूं, सेलुलोज फाइबर क्या होता है, दैट इज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन, दैट इज एडिंग अप टू द फेसेस, मैस टू द फेसेस, और पेरिस्टालसिस में हेल्प करेगा, और जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो बाउल कैंसर से प्रिवेंट करेगा। ठीक है, हमारी बॉडी में सेलुलेज एंजाइम नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर अनएबल टू डू द केमिकल डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। ठीक है, हम केमिकली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बट हमारी बॉडी में जो टीथ के थ्रू च्यूइंग है, चर्निंग स्टमक में हो रही है, वहां पे सेलुलोज की क्या हो जाएगी, फिजिकल डाइजेशन होगी। ठीक है, लाइपेज एक्ट करेगा लिपिड्स के ऊपर, और आपके पास 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बनाएगा। अब यहाँ पे याद रखना, लिपिड्स बिग मॉलिक्यूल होते हैं, इनका सरफेस एरिया जो है वो बहुत कम होता है। इनका सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए बाइल काम करता है। बाइल डू द इमल्सिफिकेशन ऑफ द लिपिड फर्स्ट, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो चेंज हो जाता है, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है। सो दैट्स वाई लाइपेज हर तरफ से उसके ऊपर एक्ट कर सकेगा, और जल्दी से उसकी क्विक डाइजेशन हो गई 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल में, बिकॉज बाइल ने बाइल। अब यहाँ पर एक और बाइल से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आप कहेंगे कि मैम इधर से उधर टॉपिक को ले जाती हैं, बेटा आपका जो बायो का कंटेंट है दैट इज हाईली इंटीग्रेटेड। ठीक है, कहीं से भी उठा के एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ लेगा, आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे मेरे माइंड में चीज आ रही है मैं आपको बताती जा रही हूँ। बाइल जो है वो फिजिकल डाइजेशन करता है। ठीक है, वो लिपिड के बिग मॉलिक्यूल को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से लाइपेज दैट कैन एक्ट फ्रॉम द ऑल साइड्स। अच्छा, एक और मजे की बात आपको बताऊं, दैट इज अ मिसकंसेप्शन के बाइल जो है वो एंजाइम है, बाइल बिल्कुल एंजाइम नहीं है। एंजाइम्स विल बी डूइंग ओनली द केमिकल डाइजेशन। ठीक है जी, प्रोटीएजेज आपकी बॉडी में हैं, बहुत सारे प्रोटीएजेज हैं, पेप्सिन उनमें से एक है। प्रोटीन पे एक्ट करके आपके पास ये पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड में चेंज कर देंगे। सुक्रेज दैट इज अ टेबल शुगर आपके पास जो होती है, ठीक है, सुक्रोज के ऊपर एक्ट करेगा, सुक्रोज चेंज हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज फ्रॉम द फ्रूट्स में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब एंजाइम हमारी बॉडी में रिवर्सिबल रिएक्शन को भी कैटालाइज करते हैं, लाइक हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जब आती है तो उसकी कंसंट्रेशन जब ब्लड में ज्यादा हो जाती है, उसने एक्सहेल होना है, तो एक्सहेल होने से पहले वो ब्लड के अंदर चली जाती है कुछ अमाउंट में। ठीक है, और कार्बोनिक एसिड बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये सारा हमारे ब्लड के अंदर हो रहा होता है। और जैसे ही फिर हमारे पास जो होता है ना, बिल्कुल लंग्स के पास पहुंचती है ब्लड फॉर एक्सहेलेशन एक्सपायरेशन, तो क्या होता है, ये हमारे पास डिसोसिएट बैक हो जाता है इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। सो यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं, एंजाइम आर अफेक्टेड बाय द पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है जी, अब यहाँ पर अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये टेम्परेचर की वजह से जो ग्राफ बनता है वो हमेशा एकदम से उसकी डाउनफॉल होता है। ठीक है, ये याद रखना है। कभी भी जब एंजाइम ने डी नेचर होना होता है ना अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद, बेटा वो कभी भी स्मूथ डाउन नहीं होगा, एक शार्प फॉल आएगी। अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाने की भी कोशिश करती हूँ। कहने का मकसद ये है कि जब एंजाइम ने डी नेचर होना है, ऑप्टिमम टेम्परेचर तक जाएगा, ठीक है, उसके बाद ऐसे करके नहीं आपने उसकी डाइजेशन वो ब्रेक डाउन करानी, डी नेचर नहीं करवाना, नो, दैट इज टोटली रॉन्ग। ये क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। आपने क्या करना है, आपने इस तरह से करना है, एकदम से ऊपर ले जाकर एक फॉल करा देनी है, फौरन से फॉल करानी है। ठीक है, ये शो करता है कि जी आपके पास जो है वो एंजाइम एकदम से ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद डी नेचर हो गया है। अभी हम ऑप्टिमम टेम्परेचर भी डिस्कस कर लेते हैं। एंजाइम आर अफेक्टेड बाय द पीएच, पीएच से भी इफेक्ट हो जाते हैं।
ठीक है, और एंजाइम आर अफेक्टेड बाय द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इन तीनों पॉइंट्स को भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। एंजाइम के लिए कुछ बेटा की पॉइंट्स हैं, वो आपने याद रखने हैं। एंजाइम एट द लो टेम्परेचर दे आर इनएक्टिव बिकॉज उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। मैंने बोला जहां पे टेम्परेचर का जिक्र आएगा आपने काइनेटिक एनर्जी को जरूर लिंक आउट कर देना है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी लो है तो अल्टीमेटली उसमें कोलिजन बहुत कम होगा एंजाइम और सबस्ट्रेट में, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर रेज करते हैं एंजाइम गेन द काइनेटिक एनर्जी और सक्सेसफुल कोलिजन हो जाते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जल्दी बनता है। अच्छा, यहाँ पर आप इफ यू वांट टू रिकॉर्ड दैट थिंग कर लें, जो स्टेटमेंट मैं अभी आपको देने वाली हूँ दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंजाइम्स दे आर inactive at low temperatures. With every 10-degree rise, the rate of reaction gets doubled till optimum temperature. Optimum temperature क्या है? The temperature at which the enzyme work best, जहां पे product rate of reaction, जहां पे product maximum बनेगा, that will be the optimum temperature for that particular enzyme. Beyond that temperature, उस temperature के बाद आपके पास enzyme will start getting denature, और एकदम से आपने इसको ड्रॉप करवा देना है। ठीक है, डीनेचर करवा देना है। सो रिपीट मेरे साथ कर लें, याद कर लें। एंजाइम दे आर इनएक्टिव एट लो टेम्परेचर, with every 10 degree rise rate of reaction gets doubled till optimum temperature. After that the enzyme gets denature, and denaturing is जो है वो रिवर्सिबल नहीं है, दैट इज इरिवर्सिबल। एंजाइम रिमेन्स नो मोर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर द सबस्ट्रेट। अब होता क्या है उसमें, बेसिकली डीनेचर कैसे हो जाते हैं एंजाइम? एंजाइम दे आर हैविंग द 3D शेप। 3D शेप इस तरह से होती है, एंड दैट 3D शेप इज ये इसमें पेप्टाइड चेन्स जो होती हैं दे आर हेल्ड एट देयर प्लेसेस विद द वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। तब जब मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी तो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे अपनी जगह से। जब लूज करेंगे तो अल्टीमेटली दे आर नॉट गोइंग टू होल्ड द पॉलीपेप्टाइड चेन एट देयर पर्टिकुलर प्लेसेस, जिसकी वजह से क्या होगा जनाब, हमारे पास एंजाइम अपनी 3D शेप लूज कर देगा। दैट विल बी हैविंग, उसकी एक्टिव साइट चेंज हो जाएगी, दैट विल बी नो मोर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर द सबस्ट्रेट, एंजाइम कंसीडर्ड हो जाएगा डीनेचर। अब मैं ये बताऊं, आपको रिपीट कर रही हूं, एंजाइम हाई टेम्परेचर पे डीनेचर होगा, आपके जो लो टेम्परेचर है उस पे एंजाइम रहेगा इनएक्टिव। ठीक है, इनएक्टिव और डीनेचर को कंफ्यूज नहीं करना। अच्छा, अब जब इनएक्टिव है, अब जब ऑप्टिमम टेम्परेचर तक पहुंचेगा तो इसकी एक्टिविटी बेस्ट हो जाएगी, बट डीनेचर जब हो जाएगा, डीनेचरेशन के बाद दैट इज इरिवर्सिबल चेंज, वो कभी भी एक्टिव नहीं हो सकेगा। एंड एग्जाम में अक्सर आ जाता है बॉइलिंग करेंगे या आप एंजाइम के साथ पीएच चेंज कर देंगे, उसकी ऑप्टिमम जो पीएच है उसे चेंज करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी लूज हो जाएगी बिकॉज एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, एंड दैट कंडीशन एंजाइम इज कंसीडर्ड नो मोर द कैटलिस्ट। ओके, ये कीवर्ड्स इधर लिख लिए हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लें कि ये आपके एग्जामिनर को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाती है विद द टेम्परेचर, वायलेंट वाइब्रेशन होती है जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड चेन, एंड 3D शेप एंजाइम की लूज हो जाएगी, एंजाइम विल गेट डीनेचर, दैट इज नो मोर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर द सबस्ट्रेट, एंड डीनेचरिंग इज इरिवर्सिबल, एंजाइम इज नो मोर द कैटलिस्ट। ओके, नाउ द इफेक्ट ऑफ द पीएच ऑन एंजाइम एक्टिविटी। अब एवरी हमारे पास जो है एंजाइम दैट इज हैविंग इट्स ओन पीएच रेंज। ठीक है, कुछ एंजाइम आपको पता है कि स्टमक की एसिडिक पीएच है, pH 2 है, वहां पर सिर्फ प्रोटीन डाइजेशन होती है, वहां पे पेप्सिन वर्क करेगा बेस्ट। बट मेरे माउथ की और इंटेस्टाइन की पीएच है अल्कलाइन, और वहां पर एमिलेज ने बेस्ट काम करना है। तो एमिलेज के लिए अल्कलाइन पीएच और पेप्सिन के लिए एसिडिक पीएच है। ठीक है जी, अब इस एंजाइम ए की आपने मुझे बता देनी है पीएच ऑप्टिमम क्या है। अब ऑप्टिमम पीएच के लिए बेटा आपने पीक पे यहाँ पे अपना पेंसिल रखनी है और स्केल के थ्रू आपने डायरेक्ट यहाँ पे लाइन लगा लेनी है। ठीक है, आपने इस तरह से कैलकुलेट कर लेनी होती है ऑप्टिमम पीएच, जहां पर पीक पे जाएगा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, दैट इज द ऑप्टिमम पीएच और एंड द ऑप्टिमम टेम्परेचर। ओके, अब पीएच की वजह से अब आपको पता होना चाहिए कि पीएच बेसिकली बिकॉज ऑफ द एसिड और बेसिस की वजह से होती है। जो हाइड्रोजन आइन ऐड कर देंगे दे आर द एसिड, and usually they are having the pH below 7.
5 6 4 3 2 1 इस तरह करके होगी। और जो बेसिस होती हैं दे आर ओ एच, हाइड्रोक्साइड आइन होता है उनके अंदर। दे आर अल्कलाइन। यूजली टूथपेस्ट के अंदर, मैं यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, टूथपेस्ट के अंदर बेसिस होती हैं, बिकॉज हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं, तो जब हम सुबह टूथब्रश करते हैं दैट इज गोइंग टू न्यूट्रलाइज दैट एसिड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अल्कलाइन पीएच है दैट इज अबव 7 8 9 10 इस तरह से, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू वर्ड्स के एंजाइम किस तरह से वर्क बेस्ट करते हैं। कुछ एंजाइम लाइक मैंने पहले बताया, एसिडिक एनवायरनमेंट में पेप्सिन और एमिलेज, अल्कलाइन एनवायरनमेंट में करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें भी ब्रेक डाउन हो जाएंगे। अब क्या होता है, अब आपको पता है कि एंजाइम जो पीएच है, एसिड के पास H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, किसके पास, बेसिस के पास। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन ये इंटरफेयर करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टरप्ट हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएगा एंजाइम। अभी कुछ इस तरह से है बेटा, देखो अगर एंजाइम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक दैट इज अ थ्योरी, ठीक है। एक एंजाइम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी एंजाइम पे नेगेटिव है, सबस्ट्रेट पे पॉजिटिव है, तो दोनों में अट्रैक्शन होकर कॉम्प्लेक्स जबरदस्त बन गया। बट अगर मैं उस एनवायरनमेंट में एसिडिक मीडियम डाल दूंगी सबस्ट्रेट के साथ, तो क्या होगा, आपके पास जो एंजाइम की सरफेस है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी और सबस्ट्रेट भी ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे और अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा, ये जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा। दैट इज अ थ्योरी के इस तरह से भी हो सकता है। नाउ कमिंग टू वर्ड्स, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इन दोनों का इफेक्ट चेक कर लेते हैं। देखें जब अब यहाँ पर आप ये देखो, ये मेरे पास रेड वाले एंजाइम है, सबस्ट्रेट आपके पास लो है, तो आपके पास वो जल्दी जल्दी बाइंडिंग हो जाती है, ठीक है। बट जैसे ही मैं सबस्ट्रेट ज्यादा एड अप कर दूंगी, फायदा कोई भी नहीं होगा, बिकॉज लिमिटेड एक्टिव साइट है, लिमिटेड बिकॉज ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ एंजाइम, सो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। सो ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। टिल एक्स यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ तक आपके पास क्या होगा, एक्टिव साइट्स आर फ्री, सबस्ट्रेट विल बी कमिंग एंड गेटिंग फिट इनटू द एक्टिव साइट, तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन होता जाएगा। आफ्टर दैट मैं सबस्ट्रेट जितना मर्जी ऐड कर दूं, नो मोर एक्टिव साइट इज फ्री, जब तक प्रोडक्ट बन के एंजाइम फ्री नहीं हो जाता। तो इस पॉइंट पे आपके पास क्या होगा, एंजाइम जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा करने के बाद भी रेट ऑफ रिएक्शन बिकम कांस्टेंट, बिकॉज ऑल द एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय द सबस्ट्रेट, ठीक है जी। तो ये लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। इसकी डायग्राम देख लें कि इस पॉइंट पे मेरे पास मैं सबस्ट्रेट इंक्रीज कर रही हूं, बट नो एक्टिव साइट इज अवेलेबल फॉर अकोमोडेटिंग द सबस्ट्रेट, ठीक है। तो जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद आपके पास जो है वो एंजाइम फ्री होगा, तो फिर उसके बाद आपके पास सबस्ट्रेट उसमें आके फिट होगा। हाँ, अगर इस स्टेज पर मैं अब एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दूं, तो सबस्ट्रेट को फ्री साइट्स मिल जाएंगी, दे आर गोइंग टू फिट इनटू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम और जाके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देंगे। नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पास एंजाइम के डेली लाइफ यूजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एंजाइम आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, जर्मिनेशन, आपके पास जूस एक्सट्रैक्शन में, बायोटेक्नोलॉजी में, आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में, डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए लैब कंडीशन में, और वॉशिंग पाउडर्स के अंदर। डिस्कस करते हैं डिटेल से। फोटोसिंथेसिस आपको मैंने बताया, इसमें बिग मॉलिक्यूल बन रहा है ग्लूकोज। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि फोटोसिंथेसिस कैटाबॉलिक रिएक्शन है या एनाबॉलिक, ठीक है जी। ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे सीड जर्मिनेशन है। सीड को जर्मिनेट करने के लिए सीड के कॉटिलिडन के अंदर अच्छी खासी अमाउंट में फूड स्टोर होता है, वो स्टार्च भी है, वो फैट्स भी हैं, वो प्रोटीन्स भी है। तो जैसा सबस्ट्रेट होगा वैसा ही आपके पास डेफिनेटली सीड के पास इटसेल्फ ही एंजाइम होगा। अभी यहाँ पे दिखा दूं, सीड में से एमिलेज रिलीज हुआ, दैट इज गोइंग टू डाइजेस्ट द स्टार्च इनटू माल्टोज। शाबाश। माल्टोज क्या होगा, रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा और सीड जर्मिनेट करने लग जाएगा, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये आपको डायग्राम दिखाई गई है कि जिस तरह का, बेटा याद रखना, सबस्ट्रेट है सीड के पास, हम चूंकि सीड्स में से ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं और सीड आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो स्टार्च के अलावा सीड के अंदर फैट्स भी हैं, तो फैट के लिए डाइजेशन के लिए लाइपेज भी सीड के पास ही होगा। प्रोटीन है तो प्रोटीन की डाइजेशन के प्रोटीएजेस भी सीड के पास ही होंगे। ओके, एंड ऑल दे आर इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन, और सीड जर्मिनेट करेगा उसकी रेस्पिरेशन से एनर्जी लेकर।
ओके, नाउ दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इस दफा आने का चांस है वैसे, ठीक है। एंजाइम इन द प्रोडक्शन ऑफ जूस, डिफरेंट आपके मार्केट में जो जूस अवेलेबल होते हैं इनमें हमारे पास दे आर यूजिंग द पेक्टिनेज एंजाइम। ये टॉपिक आपके बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी है, इसलिए यहाँ पे आपको रिपीट करके मैं बता रही हूँ। बेसिकली होता ये है कि जब आप जूस मॉलिक्यूल्स आर बिगर वन, ठीक है, तो जब आपके पास सेल वॉल जब हम क्रश करते हैं तो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जूस बाहर आ जाता है सेल से। लेकिन अगर हम उसके अंदर रिमेंबर, सेल वॉल के अंदर एक आपके पास मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं पैक्टिन, ठीक है। पैक्टिन क्या करेगा, पैक्टिन जो है ना, इसकी डाइजेशन के लिए हमने पैक्टिनेज एंजाइम यूज करना है। जब पैक्टिनेज एंजाइम जो पैक्टिन को डाइजेस्ट कर देगा, जो सेल वॉल के अंदर है प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन कर देगा, तो अच्छी तरह से जूस जो है दैट कैन बी स्क्वीज्ड आउट ऑफ द फ्रूट। तो फ्रूट में से जूस को निकालने के लिए हमने पैक्टिन को ब्रेक करना है, और इसके लिए यूज करना है एंजाइम पैक्टिनेज। घर में नहीं कर सकते, अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज में ये यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, जूस अच्छी तरह से बाहर आ जाएगा। और एक और, आपने अक्सर घर में जब जूस आप निकालते हैं तो आपने देखा होगा लिमिटेड अमाउंट में जूस निकलते हैं। पैक्टिनेज जब यूज करेंगे तो रिच अमाउंट में जूस आपका फुल ऑलमोस्ट फुल फ्रूट से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जो आप घर में जूस फ्रेश जूस बना रहे होते हैं वो थोड़ा सा क्लाउडी होता है, बिकॉज आपके पास जो पेक्टिन होता है उसको थोड़ी सी क्लाउडी या लुक दे देता है। जब आप पेक्टिन के साथ यू पेक्टिनेज के साथ सॉरी इसको यूज करेंगे तो उसमें जूस बिल्कुल क्लियर बनेगा। स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर है एंजाइम्स का यूज इन द बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स, कि हम बायोलॉजिकली इसको वॉशिंग पाउडर्स के अंदर किस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए, हमारे जब हम खाना खा रहे होते हैं समटाइम हमारे खाने हमारे फूड हमारे कपड़ों पे गिर जाता है, ठीक है, उसमें फैट भी है, प्रोटीन भी है, स्टार्च भी है। उनकी डाइजेशन के लिए अल्टीमेटली आपको उस सबस्ट्रेट के डाइजेशन के लिए उससे रिलेटेड एंजाइम चाहिए। अच्छा, लाइपेज क्या करेगा, फैटी ऑयल जो हमारे खानों कुकिंग ऑयल है उसको ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। प्रोटीन्स के लिए हम प्रोटीगेजेस आपके वॉशिंग पाउडर्स के अंदर होंगे। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे अक्सर छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, उन्हें चोट लग जाती है, ब्लड आ जाता है, ब्लड निकल के कपड़ों के ऊपर गिर जाता है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर होती है हीमोग्लोबिन, ये प्रोटीन है। तो वॉशिंग पाउडर में अगर प्रोटीगेजेस होंगे तो अल्टीमेटली प्रोटीन का वो स्टेन जो है वो ब्लड का स्टेन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और अल्टीमेटली एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आपके पास जो बिग मॉलिक्यूल होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। जो जब वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम तो स्मॉल मॉलिक्यूल बन जाते हैं, सिंपलर यूनिट्स बन जाती हैं, ठीक है, विच आर सॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर के साथ वॉशिंग के दौरान में वो डिसॉल्व होके स्टेन रिमूव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोलिंग एंजाइम। जब आपने वॉशिंग पाउडर्स में यूज करना है तो आपने ध्यान रखना है, एंजाइम एक चूंकि बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर है उसमें एंजाइम इन्वॉल्व हुए हुए हैं, तो आपका जो वॉशिंग वाटर है, ठीक है, जो आपने कपड़े धोने के लिए पानी यूज किया उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा और बहुत कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ज्यादा होगा तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, लो हो जाएगा तो एंजाइम एक्टिव नहीं रहेगा। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर आपने यूज करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, डायग्नोसिस के लिए भी यूज होते हैं बहुत सारी हमारे पास, आपने इस तरह की किट्स देखी होंगी विच आर इन्वॉल्व इन द डायग्नोस्टिक पर्पसेस। यूरिन के अंदर ग्लूकोज को चेक करने के लिए जो किट्स यूज की जाती हैं, जो स्ट्रिप्स यूज होती हैं, उनमें एंजाइम होते हैं, और एंजाइम और यूरिन के अंदर जो हमारे पास केमिकल होते हैं उसके साथ रिएक्ट करके कलर चेंज करते हैं। दो ही आपके सिलेबस में नहीं है, बट एक एडिशनल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया मैंने आपको। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए जब आपने प्लाज्मिड लेना है बैक्टीरिया से, उसको कट करना है, ठीक है, और उसमें अपनी टारगेट जीन इंसर्ट करनी है और उसको फिर बाइंड करना है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए लाइगेज वगैरह यूज होते हैं। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए आपके पास एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एक डिफरेंट एंगल से आपको बताया है, जो आप पॉइंट अपना ऐड कर सकते हैं यूज ऑफ एंजाइम में एग्जाम में, तो एज मिल जाएगा आपको। अगेन ये एंजाइम की समरी है आपके सामने लिखी हुई, इसमें वही पॉइंट फिर मिसिंग है, ठीक है। चले कोई बात नहीं, कि दे कैन बी रीयूज्ड ओवर एंड ओवर। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपको यहाँ पर अब जल्दी से मुझे ये बता दें, आंसर बताएं जी इसका, शाबाश। स्टार्च इज डाइजेस्टेड टू माल्टोज बाय द एंजाइम एमिलेज।
अब लॉक एंड की हाइपोथेसिस को देखते हो, बताओ भाई लॉक क्या है और की क्या है। लॉक यहां से मेरे पास आया जनाब जी, लॉक इज एंजाइम, ठीक है, और की इज द सबस्ट्रेट, आंसर इज सी। डन हो गया, गुड। ठीक है, लॉक एमिलेज, एमिलेज करेगा स्टार्च के ऊपर एक्ट, स्टार्च इज द की। ओके, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ओह एक मिनट ठहरिएगा, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास है ये। अच्छा जी, अब इतना बेटा मुझे पढ़ा पढ़ा के एक्सपीरियंस हो गया कि मैं देखते ही आपको बता सकती हूँ इसमें हो क्या रहा है। बेसिकली एगर जेली के अंदर होती है स्टार्च, ठीक है। अब स्टार्च की डाइजेशन के लिए अल्टीमेटली मुझे एमिलेज चाहिए। एमिलेज वर्क बेस्ट करता है अल्कलाइन पीएच पे, तो एसिडिक पीएच पे तो ये डी नेचर हो जाएगा, तो बी में तो डाइजेशन यहाँ पे होने वाली नहीं है। पेप्सिन प्रोटीन के लिए है, स्टार्च के लिए नहीं है, ठीक है। पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर प्रोटीन्स डाइजेशन, नॉट फॉर द स्टार्च, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन विल बी द ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा जी, आपने क्या किया था, डायग्राम रिप्रेजेंट्स हाउ एन एंजाइम मॉलिक्यूल चेंजेस इट्स शेप, ये चेंज हो गया। अच्छा, अब बच्चे पता है क्या करते हैं, यहाँ पर वो अक्सर ही ना बेचारे इसको हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के साथ लिंक कर देते हैं। डायग्राम है ही इतनी क्यूट सी कि मेरे माइंड में भी पहले यही ख्याल आया था कि शायद ये श्रिंक हो गया सेल, ठीक है, वाटर लूज करके, लेकिन बेटा दैट इज रिलेटेड विद द एंजाइम, ठीक है। तो एक्टिव साइट तब चेंज होगी जब एंजाइम को हीट किया जाएगा, ठीक है। लो टेम्परेचर पे तो इनएक्टिव है, एक्टिव साइट तो नहीं चेंज होगी ना उसकी, तो डी नेचर होगी हाई टेम्परेचर पे, ऑप्शन इज बी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपको बता देते हैं, अगेन क्वेश्चन है, हाँ जी, इसमें जल्दी से अब इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे बता देना है। लॉक क्या है मेरे पास, लॉक इज लाइपेज, की इज लिपिड्स, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा जी, अब ये देखें, अब इस क्वेश्चन में भी ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब पीएच यहाँ पे वो कह रहा है वर्क बेस्ट एट पीएच 7, एंजाइम वर्क करता है 7 पे। अब मैंने पीएच चेंज कर दिया जी 13, किसके ऊपर इफेक्ट आना चाहिए, एंजाइम पे सबस्ट्रेट पे, अल्टीमेटली एंजाइम पे आएगा। एंजाइम्स आर प्रोटीन विच आर अफेक्टेड बाय द पीएच, दैट्स व्हाई आपको मैंने कहा था एंजाइम की समरी के वो पॉइंट्स 10 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट थे। अगर वो आपको याद हो जाएंगे फिंगर टिप्स पे तो इस चैप्टर को ए स्टार लेना तो मसला ही कोई नहीं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। ओके, सो आपके पास एक्टिव साइट एंजाइम की चेंज हो जाएगी जब आपकी पीएच चेंज हुई है, तो आंसर इज सी, ये बेचारा एंजाइम इस शेप का हो जाएगा, जबकि सबस्ट्रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम इज एक्सप्लेन्ड बाय द लॉक एंड की हाइपोथेसिस, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, नहीं भाई, एंजाइम्स आर इनएक्टिव एट लो टेम्परेचर, नो, एंड ह्यूमन एंजाइम मोस्ट एक्टिव एट 40, नहीं भाई, मोस्ट एंजाइम्स कैन only catalyze one reaction, हाँ जी, because they are specific in nature because of the lock and key hypothesis, answer is D। इन एन एंजाइम एक्शन वेयर इज द एक्टिव साइट, और लॉक क्या है की क्या है, लॉक पे आ जाओ, पहले तो देख लेते हैं। आपको पता है लॉक होता है एंजाइम, ठीक है, और हमारे पास एक्टिव साइट भी किस पे होती है, एंजाइम पे, और की क्या होती है, सबस्ट्रेट, तो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है जी, अच्छा प्लीज, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, मुझे बहुत प्यारा क्वेश्चन लगता है ये, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट मेरे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर मैंने आपको कंफ्यूज होने ही नहीं देना। ओके, अब देखो वो पूछ रहा है आपके पास डब्ल्यू एक्स और जो ये वाई और जी बने हैं, इनमें से हमारे पास एंजाइम क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सबस्ट्रेट क्या है। अच्छा बेटा देखो, ये स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, और ये प्रोडक्ट्स इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है। रूल था कि एंजाइम विल रिमेन अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन, तो जो चीज शुरू में भी है रिएक्शन के एंड पे भी है, और उतने ही नंबर में है जितनी शुरू में थी, तो दैट विल बी द एंजाइम। एंजाइम चेंज, एंजाइम रिमेन अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, तो डब्ल्यू का नंबर जरा काउंट करें, डब्ल्यू इज 2, डब्ल्यू इज 2, तो डब्ल्यू क्या हो गया, एंजाइम। अब यहां पर शुरू में जो चीज नहीं है बट एंड में है, दैट विल बी द प्रोडक्ट, एंड दैट इज द वाई एंड जी। वाई एंड जी हो गया आपके पास प्रोडक्ट, डब्ल्यू हो गया आपके पास एंजाइम। तो सबस्ट्रेट क्या है, जो यहाँ पे शुरू में तो था लेकिन एंड में बेचारा बचा ही नहीं, एक बचा है, तो दैट इज द एक्स, तो आंसर इज बी।
रूल क्या याद रखना है, एंजाइम रिमेन अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, जितना शुरू में नंबर था उतना ही एंड पे रहेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, ये तो बड़ा इजी था क्वेश्चन है, आपने सिंपल अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे उठा उठा के इमेजेस को इधर देखते जाना है, तो ए इमेज फिट हो रहा है, ठीक है नेक्स्ट। अच्छा जी, अब जो आगे क्वेश्चन करवाना है उसके लिए आपने बेटा ये स्लाइड बड़े गौर से देखनी है, ठीक है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट तभी रिपीट होगा। ओह, ये तो लगता है कोई हनी भी आ गई। ओके, नाउ जस्ट सी, एंजाइम के ऊपर आ रहे हैं सबस्ट्रेट्स, ठीक है, एक्टिव साइट है, बन गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स, बना हमारे पास प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट हो गया रिलीज, एंजाइम हो गया फ्री, ठीक है, ये है एनाबॉलिक रिएक्शन, स्मॉल मॉलिक्यूल से बिग मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कैटाबॉलिक रिएक्शन, सबस्ट्रेट है बिग, ठीक है, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, और प्रोडक्ट हो गया रिलीज, ठीक है। अब ये है कैटाबॉलिक रिएक्शन, बिग मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है जी। अब बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने मुझे कैटाबॉलिक एनाबॉलिक इसकी ऑप्शन आपने मुझे राइट बता देनी है, ठीक है जी। इसमें ऑप्शन वैसे अगर देखा जाए, ये मेरे पास एंजाइम है, ठीक है, तो ऑप्शन इज डी, वाई आपके पास आ जाएगा, तो प्रोडक्ट ऐसा भी बन सकता है अगर ये कैटाबॉलिक है, अगर ये आएगा तो प्रोडक्ट एनाबॉलिक होके ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज अगेन एंजाइम रिमेन अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, इसका आंसर भी मुझे आपने एंजाइम रिमेन अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कहकर आंसर मुझे कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं लिया स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम क्या हैं, दे आर रीयूजेबल मैनी टाइम, यस दे कैन बी रीयूज, दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, यस एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, नो दैट इज रॉन्ग, ठीक है, तो ऑप्शन इज, दोबारा इसको चेक कर लेते हैं, टिक के बगैर मेरे से काम होता नहीं है, ठीक है। अच्छा, reusable many times, yes, yes, specific in their action, yes, yes, तो ये राइट ऑप्शन विल बी ए, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है जी बेटा, जल्दी से इसको देखो, पेप्सिन इज एन एंजाइम दैट इज एक्टिव इन ह्यूमन स्टमक, विच ग्राफ शोज हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पेप्सिन इज अफेक्टेड बाय द पीएच। हाँ जी, अब जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, ऑप्शन है जी इसकी, पेप्सिन एंजाइम की क्या ऑप्शन होनी चाहिए, ऑप्टिमम देखो 2 पे जा रहा है, ऑप्टिमम इसमें 7 पे जा रहा है, ठीक है, राइट, हिंट मैंने दे दी है, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर ये क्वेश्चन नंबर नोट कर लो, दैट इज 23, ये 25 क्वेश्चन का नंबर है। Okay. The graph shows the effect of pH on the activity of 4 different enzyme. 4 different enzyme क्या है, QRS, तो फोर्थ किधर गया, फोर्थ इज द P। अक्सर बच्चे इसको बेसलाइन समझ लेते हैं, इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, बेटा प्लीज, दैट इज द फोर्थ एंजाइम, ऊपर अगर क्वेश्चन पढ़ा होता ना तो आपको जरूर पता चल जाना था। अच्छा, अब यहाँ पे विच पेयर ऑफ एंजाइम इंक्लूड वन फ्रॉम द स्टमक एंड वन दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय पीएच, दैट इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, जिसके ऊपर पीएच का इफेक्ट नहीं होगा और स्टमक से कौन सा है, ठीक है। ओके, अब ये जो आपको मैंने वो बताया था सारा एमिलेज का और ये सारा कुछ, दैट इज द एगर जेली जिसमें स्टार्च है, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, यस, वेरी गुड। ओके, नाउ दैट इज अ थ्योरी क्वेश्चन, आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है, आपको एंजाइम दे दिया जाता है और ये MnO P जो भी दिए जाते हैं आपको लेबल करना है, M है मेरे पास सबस्ट्रेट, N है एक्टिव साइट, O है एंजाइम एंड P इज द प्रोडक्ट। ओके,
अब इन सारे क्वेश्चन को देखें. बाय रेफरिंग टू द फिगर 2.1, explain why only small amount of enzyme is needed, because they can be reused, they remain unchanged at the end of the reaction. Explain how rise in temperature may increase the rate of enzyme controlled reaction, because आपके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, सक्सेसफुल कोलिगेंस होंगे और हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है. आप इसमें ये सारे पॉइंट बता सकते हैं. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी अगेन इज अ कीवर्ड. एट हाई टेम्परेचर एंजाइम्स आर डीनेचर, नो मोर कैटलिस्ट. यूजिंग लेटर एम एंड एन, आप बताएं कि क्या हो रहा है एंजाइम के लिए. एम और एन है. एन जो है 3D शेप लूज कर देगी, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पे ब्रेक डाउन हो जाएंगे. एंजाइम विल बी लूजिंग इट्स शेप. ठीक है. एक्टिव साइट अपनी कॉम्प्लीमेंट्री शेप लूज करेगी, सो दैट इज नो मोर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर द एम. सो आपने एम और एन का कॉन्टेक्स्ट ही लिखकर आंसर देना है. थैंक यू वेरी मच. आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा. प्लीज कमेंट करके बताइएगा. मैंने एंजाइम का टॉपिक, एंजाइम का चैप्टर आपको फुल ऑल एस्पेक्ट से कवर करवा दिया है. दुआओं में याद रखिएगा. प्लीज डू शेयर माय चैनल. ठीक है. उसको लाइक भी करो, थम्स अप भी दो और कमेंट करना ना भूलना. ये वो डायलॉग है जो मुझे याद नहीं होते. ठीक है. अल्लाह हाफिज क्लास. अल्लाह हाफिज.